Guru with Shruti. You're watching episode number 5, Women Safety. क्या आज के माहौल में हम सेफ हैं? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था. वाई, व्हाट, क्यों? Being a mother of a daughter, it always give me a click कि क्या being a girl मैं सेफ हूँ या फिर being a daughter मेरी बेटी सेफ है. जब से हमें पता चला कि कोलकाता में उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, और every as per the statistic, after every 6 minutes, after every 15 minutes, these rape cases happen. But कुछ cases ऐसे होते हैं जो हमारे सामने आते हैं और हम प्रोटेस्ट करते हैं. But what after protesting these things? हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के बाद भी are we getting the justice? Today we have Dr. Amita Dhawan Sehdev, who is helping us to know what exactly we can do to save ourselves as a woman, as she is also a mother of daughter. Hello Shruti. Hi ma'am. I'm so happy to be here and talk to you Thank you. on this very crucial topic. How do we make ourselves and our girls safe in today's world? Safety is a very big issue right now. With every day the newspaper is filled with these rampant cases of sexual molestations and rapes. So, are we safe in today's world? What do you say? You have a daughter who is growing up. Do you fear for her safety? Yeah, sure. Yes, ma'am. Actually, I've go through with the statistics of India. In every 15 minutes, we'll say, if every 15 or 6 minutes, the girl or a woman is harassed by one or another person. So, I'm like, when I've seen that statistic, I got shattered at that time. Like, is my daughter safe? Even whenever she comes and said, "Mama, मुझे ना uncle ने डांटा," so it comes in my mind, कौन से uncle ने डांटा? Or like there are lots of thoughts comes in our mind, whether she is safe when she is going to the school through cab, or she is safe in the school, because she is too young right now. तो उसको अभी तो बोलना भी, अगर हमने बताया भी ना बच्चे को कि बैड टच और गुड टच क्या है, एवरी टाइम आई ऑलवेज कीप इन माइंड कि मैं उसको बताती रहूँ, अधीरा डोंट एवर आस्क एनीवन टू टच यू, कोई भी टच ना करे आपको एक्सेप्ट मम्मा और ना हु ऑल आर देयर विद यू, वो ही आपको लव करेंगे. नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड केयर फॉर यू एंड और गिव यू अ लव. बट स्टिल शी इज़ अ लाइक स्मॉल चाइल्ड. उसके माइंड में हम कितना ही डालेंगे, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव द इविल आई ऑन द गर्ल्स राइट नाउ. सो इवन आई शैटर्ड फॉर दैट. It's a very sorry state of affairs right now, and a very fearful world that we are living in. Women were never safe as such. Even when we were kids, was there absolute safety? No, we were not safe even then, but safety was relatively better. Maybe times were simpler, crimes were less. Movement of a girl was very much restricted. We never ventured very far. Few women were working. Those who were working would make sure they would come back before it turned dark. Late hours of work, late hours of going out, late party hours was not a norm then. So probably we were relatively safer. But times have changed. We have to accept that. Yeah. गर्ल्स आर गोइंग आउट, पढ़ने भी जा रही हैं, काम पे भी जा रही हैं, ट्रैवल भी कर रही हैं, and we can't curtail their movements. No, they are doing so well in
And it's important in this time. It's important to want a girl this time. Whether we cannot depend on the boys or we cannot depend on the fathers only. This is the time where we cannot depend on only on one single person, because नहीं, and like any life, every life is precious. yeah, So everybody has dreams, aspirations. Everybody wants wings to fly where she can, yeah, he or she, you know. So why clip a girl's wings? तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम ये जॉब नहीं करो, या तुम इस समय मत वापस आओ, तो इस समय वहाँ नहीं जाओ. वेरी सैड टू से हमें कहना पड़ता है, हमें अपनी लड़कियों को कहना पड़ता है. मेरा बेटा रात के 2 बजे घर आएगा, दो आई फियर फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि एज सच सोसाइटी ऐसी है कि अटैक तो लड़के पे भी हो सकता है. लेकिन इफ़ माई डॉटर इज़ कमिंग लेट from somewhere, maybe her workplace, maybe she has traveled and she is in a cab or somewhere, we are very frightened till she is back home. वो सेफ्टी देखो, एक रिलेटिव सेफ्टी है, एब्सोल्यूट सेफ्टी तो नहीं है. सेफ्टी हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट क्वार्टर्स, यू नो. पहले हम फैमिली के अंदर में बात करें कि हम अपनी डॉटर्स को कैसे सिखाएं. दे हैव टू बी tutored or taught from a very young age, when they are not even aware of their own sexuality, how to keep themselves safe. तो वो सिखाना माँ बाप का काम है. बाहर भेज रहे हैं, स्कूल में टीचर्स को और ओरिएंटेशन देनी पड़ेगी कि वो एक बाउंड्री कहाँ है, कि जिसके बाद उस छोटे बच्चे को भी समझ हो कि ये सही नहीं है, किसी ने इधर टच किया सही नहीं है, या किसी ने वहाँ बुलाया तो नहीं जाना है. ये हमें बहुत छोटे बच्चे को अब सिखाना पड़ेगा. हम लोग छोटे बच्चे में हमें किसी ने ये सब ज़रूरत नहीं थी, वो टाइम्स ऐसे नहीं थे, पर अब है. वी हैव टू टीच देम कि दे आर नॉट सेफ विद एनीबडी. टोटल सेफ्टी कोई नहीं है, तो अपना बचाव खुद करना है. ये तो फैमिली में हो गई कि मुझे मेरी बेटी को, या गर्ल्स व्हेन दे ग्रो अप दे देमसेल्व्स हैव टू नो कि मुझे किस समय कहाँ जाना है. और अगर ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ आवर्स, उसके वर्किंग आवर्स ऐसे हैं कि लेट आ रही है काम से या लेट जा रही है, ट्रैवलिंग है, तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है वाइल शी इज़ ट्रैवलिंग. लोनली डार्क एलीज में अवॉइड करे जाना. कैब्स यूज़ करनी है. आज के टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप अपना एक शेयर कर लो अपने पेरेंट्स या अपने गार्जियंस के साथ कि आपकी ड्राइव को वो ट्रैक कर लें. आई थिंक कुछ इस तरह के मतलब स्टेप्स लेने होंगे. दिस इज़ एट अ वेरी पर्सनल लेवल. बाकी सोसाइटी के लेवल में तो लॉट्स हैज़ टू बी डन. यू नो, आवर वर्क प्लेसेस, एक तो हॉस्पिटल की बात हुई थी. आई एम माई सेल्फ अ डॉक्टर. Government hospital, they are such shoddy places. Doctors don't have a respectable place to even sit, spend 5 minutes. They want to have their lunch. They don't have a proper, usually in government places, you know, they have to manage somehow to find a decent clean place to sit and have a lunch, or to go and have a nap, or when they are at for 36 hours, 48 hours of duty, they need a small break in between. तो उस ब्रेक में वो कहाँ जाके एक पीसफुली बैठ सकें, सो सकें, रेस्ट रूम्स यूज़ कर सकें. ऐसी प्रोविजंस ही नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मोस्ट ऑफ देम में नहीं है. ये तो अथॉरिटीज़ को एश्योर करना होगा ना. ये चेंजेस, मैं जब एक स्टूडेंट थी जो डिप्लोरेबल कंडीशंस थे, हम लोग हॉस्पिटल जाते थे, ड्यूटी करते थे 36 आवर्स की, तो बैठ के खाना खाने की कोई जगह नहीं थी. एक्रॉस हॉस्पिटल से निकलो, रात को एक्रॉस द मेन रोड, फिर आपका हॉस्टल आएगा, उतना सारा रास्ता तय करके आप वापस आओगे टू हैव योर मील.
कोई सोने की प्रॉपर जगह नहीं होती थी। किसी किसी डिपार्टमेंट में एक छोटा सा ड्यूटी रूम होता था, उसमें 1 या 2 बेड लगे हैं, उसी में ऐसे ट्रांसफर एक लड़का भी लेके आए, 2 लड़की भी लेके है, फिर एक लड़का लेके है, ऐसे करके तो नैप ले लेते थे। ओके, दैट वॉज द कंडीशंस देन। तो आई डोंट थिंक अभी ये 30-35 ईयर्स के बाद कुछ खास चेंज हुआ है। एक स्किल द सेम, जगह नहीं है बैठ के रेस्ट करने की, एक क्लीन प्लेस नहीं है बैठ के खाना खाने की, एक वो डिग्निटी से उनको एक पर्सनल स्पेस तो देना एक अथॉरिटीज को एश्योर करना चाहिए ना। and though we says that doctors are like we always keeps on saying that doctors are god, हमने दर्जा दिया हुआ है भगवान का, because at the end when we are not able to cure ourselves we go to the doctor only. We believe in the doctors कि doctor will treat us और हमारे को वो ही ठीक कर पाएंगे, but still if like our government hospitals are not giving this much respect to the गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो देखो जूनियर डॉक्टर्स के लिए तो ऐसा है कि कोई स्पेस है ही नहीं। वो आएंगे, काम करेंगे और उनका जो अपना कोई हॉस्टल है या रूम है या वेरेवर दे आर पुटिंग अप, उनको वहीं वापस जाना होता है। हॉस्टल रूम, हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर दे डोंट हैव, मतलब एक डिग्निफाइड, जैसे एक नर्सेस ड्यूटी रूम रहता है। ओके, डॉक्टर्स के लिए कहीं है कहीं नहीं है। जनरल ड्यूटी रूम है, वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स हैं तो जूनियर्स विल नॉट इवन अटेम्प्ट टू गो देयर, लाइक इंटर्न और हाउस स्टाफ बहुत जूनियर है, दे आर बडिंग डॉक्टर्स, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक डिस्टेंस रहता है। एंड इवन सीनियर डॉक्टर्स को अगर मैं देखूँ तो डॉक्टर्स के पास इवन आफ्टर दे हैव बीन इन सर्विस फॉर मैनी ईयर्स, कोई मे बी एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास एक अपना रूम होता है जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट बैठता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अलावा उस एक डिपार्टमेंट में 5-6 और अगर सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे डोंट हैव अ प्लेस टू सिट। वहीं वार्ड में सिस्टर्स रूम के आसपास ही 2-1 चेयर लगा के वो अपना काम करेंगे, लिख लेंगे, थोड़ी देर बैठ लेंगे, राउंड ले लेंगे। दैट इज हाउ दे स्पेंड द टाइम। so if we'll see the private hospitals have their special rooms for the doctors, right? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनके देखो डॉक्टर्स के लिए ऐसा होता है ना कि सीनियर डॉक्टर्स को उतनी लॉन्ग आवर्स के लिए नहीं रहते हैं ना। एक ओपीडी है, ओपीडी करेंगे चले जाएंगे, राउंड्स है, राउंड्स आके लेंगे चले जाएंगे, ठीक है। इट इज़ द जूनियर डॉक्टर्स जो 36 आवर्स एट अ स्ट्रेच वहाँ काम कर रहे हैं, उनको स्पेस चाहिए बेसिकली, रेस्पेक्टेबल स्पेस। सीनियर्स तो घर से ऑन कॉल पे हैं, उनको कॉल जाएगी तो आएंगे, विजिट करेंगे, चले जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बैठना है तो कोई एक वार्ड के पास एक डॉक्टर्स रूम होगा, वहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन वो यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है जो जूनियर डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं। एक इंटर्न है, एक हाउस स्टाफ है, वो आज सुबह ड्यूटी पे आया है, आज सारा दिन होगा, रात भर होगा, कल भी होगा, परसों वो जाएगा, तो वो ये 36 आवर्स आप समझ लो कैसे स्पेंड करता है। ना कोई प्रॉपर बैठ के खाने की जगह, ना कोई प्रॉपर रेस्ट करने की जगह, नींद लेने की जगह। That is how it is, and nobody ever raised a voice. अब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि एक डॉक्टर सेमिनार रूम था जो डे टाइम में एक ऐसा सेमिनार रूम होता है, वहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं, तो उस रूम को एज अ रेस्ट रूम, क्योंकि रात में तो ऑब्वियसली कोई सेमिनार वेमिनार नहीं होगा, तो उस रूम को एज अ रेस्ट रूम वो यूज़ कर रही है, कहीं तो यूज़ करेगी। ऐसे ही हर जगह कुछ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करते हैं। कोई पेशेंट, कोई रूम ऐसा है जिसमें पेशेंट नहीं है, अभी खाली है, तो डॉक्टर उसमें जाके अपनी बेडशीट बिछा लेगा। कहीं सेमिनार रूम में एक कॉर्नर में कहीं कभी बेड अवेलेबल है, कभी बेड्स नहीं। आई रिमेंबर इन आवर टाइम्स कई बार एक यूनिक रूम होता था जो दिन के समय इट वॉज अ ड्यूटी रूम, वहाँ पे आप बैठ के ड्यूटीज असाइन होती थी, ये वार्ड लेना, यहाँ जाना, इस पेशेंट का ये, इस पेशेंट का वो। तो छोटा सा रूम होता था जिसमें एक टेबल, एक चेयर होती थी और एक काउच होता था टू एग्जामिन द पेशेंट काउच जो होता है।
तो रात के टाइम तो वो रूम खाली होता था, तो जूनियर डॉक्टर्स रात के टाइम उस रूम में वो जो टेबल होता था, वर्किंग टेबल, उस टेबल के ऊपर चढ़ के सोते थे। मतलब इस तरह से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट करनी होती थी कि 2-3 घंटा लेटना है, इस टेबल पे शीट बिछा के लेट जाते हैं। दैट वाज हाउ, मतलब इस तरह से सब डॉक्टर्स बने हैं। आई एम सो सॉरी। And people really think that your job is so easy, like you are earning a lot of money. Doctors are making lots of money in COVID, नहीं, एक्चुअली but वही they are the है। real fighter at the time of COVID, we can say. They were सो मतलब एक एक्सपीरियंस डॉक्टर, फ्लरिशिंग डॉक्टर जो बन गया, पब्लिक तो उसको तब देख रही है ना, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले जो तपस्या, जो स्टेज, जो उसने एंड्योर किया है, वो कोई नहीं। हाँ, वो लोग नहीं देख रहे। वेरी हार्ड वर्क, जस्ट पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई टफ है, आपको एग्ज़ाम्स देना है, बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत लंबे आवर्स ऑफ ड्यूटी है, वो सब एक तरफ, लेकिन वही है कि वो बहुत डिप्लोरेबल एंड शॉगी कंडीशंस में आपको वहाँ पे एक प्रॉपर वॉशरूम भी नहीं होता है कि आप फ्रेश हो सको। नहाने की बात तो छोड़ो, टू रिलीव योरसेल्फ आल्सो देयर इज़ नो प्रॉपर प्लेस for the junior doctors. That is very sad. So as per you, if is your daughter is also doing the medicine? No, none of my, neither my son or my daughter are in this medical field. Because they are. पहले तो यही कहा जाता था, डॉक्टर की बेटी should be doctor only. हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। They didn't want to go into this line. Basically छोटे थे जब, तो हम लोग का स्ट्रगलिंग फेज था। हम लोग की इस तरह की ड्यूटीज़ होती थी, 24 आवर्स की ड्यूटी, 36 आवर्स की ड्यूटी, बहुत लॉन्ग आवर्स एब्सेंट हैं घर पे, तो 2 of us would manage it between us। हम इस तरह से अरेंज करते थे कि अगर मेरी 24 आवर्स की ड्यूटी है तो मेरे हस्बैंड अपनी नहीं लगवाएंगे, उनकी है, तो ये सब अरेंजमेंट करने पड़ते थे कि एटलीस्ट वन ऑफ अस इज़ देयर विद द चाइल्ड रात में। दिन में तो फिर कुछ आवर्स के लिए वो स्कूल से आ गए और अकेले हैं और हम थोड़े लेट पहुंचेंगे, वो होता था, बट वी वुड अरेंज इट दैट वे। तो वो इतनी लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी और वो सब देख के, इवन व्हेन दे वर अभी 7th 8th में थे, तो दे हैड मेड अ डिसीजन कि हम लोग को ये वाला कैरियर नहीं लेना है, डॉक्टर नहीं बनना है इस तरह से, बिकॉज दैट स्ट्रगल, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, यू नो, दोज अर्ली ईयर्स व्हेन यू हैव अ फैमिली, आपके बच्चे छोटे हैं, यू हैव टू ब्रिंग देम अप, उनको भी टाइम देना है, उनकी पढ़ाई देखनी है, उनका एकेडमिक्स के अलावा दूसरे इंटरेस्ट्स हैं, उसके लिए भी टाइम निकालना है, और अपना काम भी देखना है, अपनी ड्यूटीज़ हैं। जब आप यंग होते हो तो आवर्स ऑफ ड्यूटीज़, एज यू ग्रो सीनियर, तो आवर्स ऑफ ड्यूटीज़, स्पेशली व्हेन यूर अ जॉब, अब तो मैं जॉब में नहीं हूँ, इट्स अ प्राइवेट प्रैक्टिस, तो जब आप जॉब कर रहे हो तो 24 आवर्स की ड्यूटी हफ्ते में एक बार, कई बार 2 बार भी लगती है, संडेज़ भी लगती है पूरा दिन। तो इट वॉज नॉट ईजी, यू नो, दैट टाइम विद लिटिल किड्स, दोनों हस्बैंड वाइफ इस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। फिर जब आप 36 आवर्स की ड्यूटी करके घर आओगे, यू आर टायर्ड, वो अपना टायर्डनेस भूलना पड़ता था, बिकॉज हार्डली गेट टाइम टू रेस्ट। हम घर वापस आए हैं तो अब घर भी देखना है, घर के कोर्स भी करने हैं, बच्चों के भी हैं, छोटे बच्चे हैं, उनका होमवर्क्स है, उनकी एक्टिविटीज़ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, स्कूल में ये मंगाया है या ये चाहिए या बाज़ार जाना है। तो ओवरऑल वो जब इतना स्ट्रगल था तो वो रिफ़्लेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी में। वो छोटे बच्चे हैं, उनको भी समझ आता है। कई बार हमारी शायद एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिफ़्लेक्ट हो जाता होगा हमारे बिहेवियर में, आई गेस टू आवर चिल्ड्रन ऑल्सो, व्हेन दे टुक द डिसीजन कि बिफोर वो 10th वाले फेस के पहले ही, जब कि हमको क्या सब्जेक्ट्स लेना है, साइंस लेना है कि वो लेना है, तो वो 7th 8th में ही मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं,
मेडिकल मैं नहीं करूँगी. आई गेस दैट वाज द रीजन, seeing the difficult life Yeah. we had. Yeah. So that's the thing. And my next question is, ma'am, though we have lots of helpline number, do you really think that it works for a girl? Like whenever we are in trouble, if we'll just use those numbers. बहुत डाइसी होता है. You know, all these things happen in such, मतलब flick of a finger, कि she might be lucky at times कि उसने हेल्पलाइन मिलाया, लेकिन आप ये समझो कि आप कहीं पे फंसे हुए हो. somebody has wrong intentions, कोई नहीं है आसपास, और आपने हेल्पलाइन मंगाया भी. वो हेल्पलाइन तक मैसेज किया, मैसेज वो इमरजेंसी कहीं पुलिस को गया, पुलिस ने आपको ट्रैक किया, आपका ट्रैक करके निकाला कि आप कहाँ हो. फिर वो पुलिस वाले अपने स्टेशन से निकले गाड़ी लेके या जैसे भी, और वो नियरेस्ट वाले भी जो होंगे वो कब तक आपके पास पहुंच पाए, वो कितना यूजफुल होगा या नहीं होगा. वेरी डिफिकल्ट टू से. दीज आर वेज. ये तो एक ठीक है निकाले है कि आप फंस ही गए हो तो हेल्पलाइन है, आप कैब में बैठे हो तो ये ट्रिगर कर दो, ये नंबर प्रेस कर दो, पैनिक बटन दबा दो. इस तरह के बहुत कुछ निकले हैं, हम भी बार बार व्हाट्सएप मीडिया में देखते हैं. लेकिन आई डोंट नो कि 1-2% उनमें से ऐसे होंगे जो शायद इस तरह के कोई बटन प्रेस करके बच भी जाएंगे. बट ऑल दीज थिंग्स विल हैपन बिफोर दे कैन. फोन उठा के फेंक के तोड़ने में कितना टाइम लगता है. एंड द थिंग इज, एक मैन को ऑलवेज फिजिकल एडवांटेज है ओवर अ वुमन. वुमन कितनी भी स्मार्ट है, ब्रेन वाइज, कैरियर वाइज कहाँ तक भी पहुंच गई है, फिजिकली ओवर पार नहीं कर पाती है. दैट इज द डिसएडवांटेज. वो एक हर लड़की को रियलाइज करना होगा. फिजिकली ओवर पार करना थोड़ा मुश्किल होता है. गॉड हैज मेड अस दैट वे. हम बच्चों को बोलते हैं कराटे सिखाओ, टेक्वांडो सिखाओ, लेकिन रियली विल शी बी एबल टू ओवर पार दैट. एक वो जो क्रिमिनल माइंडेड उस समय जो होता है उसकी तो और ही एक्स्ट्रा हॉर्स पार होती है. कोई एक्चुअली उसको ओवर पार कर पाएगी? तो ये सारी चीज़ें आर वेरी डाइसी टू से कि आर विल दे बी रियली यूजफुल. इन द लॉन्ग रन यही कहना पड़ेगा कि हर लड़की को रीच आउट, मतलब फॉलो योर एम्बिशंस. आपकी पंख है, उड़ो. नोबडी शुड क्लिप योर विंग्स. लेकिन आप अपना एक सेफ स्पेस की ओरिएंटेशन हमेशा बना के रखो. हैव दैट सिक्स सेंस कि मुझे यहाँ जाना नहीं जाना. एक वो ओरिएंटेशन होनी चाहिए. ओवर ब्रेव होके जीने की ज़रूरत नहीं है. करो, सब अचीव करो. अचीव करने के लिए आप निकले हो घर से, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, डू योर बेस्ट, लेकिन नो योर लिमिटेशंस. So you want that we just need to make a boundary to us, like what exactly where to go and not to go. We just need to see all these. आज के टाइम में तो ऐसा करना ही पड़ेगा श्रुति, बिकॉज इट इज़ वेरी डिजायरेबल कि मैं रात के किसी भी समय में कुछ भी पहन के कहीं भी निकल जाऊं और कोई कुछ ना कहे. एवरीबडी अराउंड इज सो सेंसिबल कि दैट गुडनेस इज परवेडिंग एवरीवेयर. कोई कुछ किसी को नहीं कहेगा. दैट इज अ वेरी डिजायरेबल स्टेट टू लिव इन, बट वेरी ड्रीमी वर्ल्ड. वो रियलिटी नहीं है. रियलिटी में जीना पड़ेगा. जब तक जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है. अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है. मुझे पता है मैं गहने पहन के निकलूंगी, आई एम नॉट सेफ. वो छिनेगा. मैंने पहनने छोड़ दिए हैं.
आई विल बी अ फूल कि मैं इतना लंबा सा हार लटका के निकलूं। अगर मेरे पास हार है तो मुझे दिखाना है कि मेरे पास हार है और मैं लटका के निकलना चाहती हूँ, देन आई एम अ फूल। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं एक नर्सिंग होम में इवनिंग कंसल्टेशन एज अ जूनियर कंसल्टेंट कहीं जाती थी, वेरी क्लोज टू माई होम, इट वॉज वॉकिंग डिस्टेंस। तो वो 6 से 8 का टाइम था। नाउ अ डॉक्टर्स टाइम कैन नेवर बी, ना, एक बाउंड्री नहीं होती। वो 8 के 9 भी बजते थे, 10 भी बजते थे, काम आ गया, केस आ गया, सर्जरी आ गई, आप करके जाओगे ना। मैं 8 बज गए मैं निकल रही हूँ, ऐसा तो नहीं कर सकते। सो कई बार लेट भी होता था। तो उस समय मैं एक चेन पहन के रखती थी, और जैसे होता है ना हम लोग इंडियन फैमिलीज में, है ना, हमारी मम्मियाँ ही कहती थी गला हाथ नंगे ना रखो। हाँ, तो वो हमारी मदर इन लॉज कहती थी नहीं, हाथ का नंगे नहीं होने चाहिए, हल्की सी गले में रखो। तो गले में पहनती थी, एंड इट वाज ज्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस था। लेकिन रात के 10 बजे होंगे, ज्यादा नहीं, विंटर टाइम था। तो विंटर टाइम रात के 10 बजे दिल्ली में बहुत भीड़ भाड़ नहीं होती है। और मैं रोड क्रॉस करके अपने कॉलोनी के गेट पे जस्ट पहुंचने वाली थी कि रोड के बीच में जो क्या होता है डिवाइडर, उस पे खड़ी थी रोड क्रॉस करने को। पुलिस वाला था वहां पे। पुलिस वाले ने बोला कि मैडम, ये आप पहन के निकलोगे, कोई छीन लेगा तो फिर आप गालियां दोगे, क्या फायदा, क्यों पहनते हो ये सब? गलती तो आपकी है कि आप पहन के निकल रहे हो, क्या जरूरत है, आप मौका ही मत दो ना छीनने का। Sadly to say, that is the state of affairs. मौका मत दो अटैक होने का। डिफिकल्ट है, वेरी सैड है, लेकिन करना सब कुछ है। हम ये नहीं कहते कि घर में बैठो, ये नहीं कहते कि देर से मत निकलो, ये नहीं कहते ये मत पहनो, ये मत करो, करो सब कुछ, लेकिन विद एन ओरिएंटेशन, वॉक इज सेफ, वेयर यू आर सेफ, विद होम यू आर सेफ। वो एक ओरिएंटेशन बना के जीना पड़ेगा, दैट इज ऑल। बट स्टिल इट कम्स इन माय माइंड लाइक वेयर वी आर सेफ। क्या फोन अवेलेबल है तो अवेलेबल है, आपकी चॉइस है देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। तो आप कितना कर्व करोगे? अगर आप ओपनली नहीं अवेलेबल है तो चोरी छुपे हुए देखेगा। कब नहीं था? हम स्टूडेंट्स थे तो क्या पॉन नहीं था? तब भी था। अब और फ्री है, तब भी था। वो आंसर नहीं है। सोशल मीडिया में जो कुछ अवेलेबिलिटी है उसको कर्ब करना आंसर नहीं है। आंसर भी है कि नहीं है, ये जो मेंटल लेवल ऑफ जो मास क्राउड है, वो हम लोग की कंट्री में एक अभी जो सोच है वो ही बहुत निम्न है ना, सबकी एक सी सोच नहीं है। यू टीच योर सन टू रिस्पेक्ट, है ना, हर फीमेल को रिस्पेक्ट करना है, लेकिन ऐसे भी हैं जहाँ पे ना ये टीचिंग्स हैं, अगर हैं तो उन बच्चों में ऐसी वाली वैल्यूज नहीं है। Because there are families as well where disputes are going on. In the nuclear family, husband and wives are like disputing in front of their kids. So it might be. मतलब सोसाइटी में हर तरह का गंद है, है ना, अच्छाई है तो गंद भी है, और वो हर इंसान देख रहा है, हर लड़की हर लड़के पे असर आ रहा है, मेंटली भी इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया कर्ब करके ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपोजर है, वो जो सोच है वो ऊंची उठनी होगी। ये हमारे कंट्री में एक तो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो फ्रीडम है, ठीक है, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये क्राइम्स ऐसी जगहों में कम है, हम कहते हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ कम है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। डेमोक्रेसी नहीं है, कर्ब्स इतने हैं तो ये क्राइम्स कम है, वो अलग तरह से कर्ब किए हुए हैं, ना। गर्ल्स पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके कपड़ों पे रिस्ट्रिक्शंस है, आप बुर्का पहन के बिना नहीं निकल सकते, उस तरह के कर्ब्स करके अगर आप सोसाइटी में ये इंसिडेंट्स कम है तो दैट इज, आई डोंट थिंक, समथिंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट।
हैप्पीस्ट केक तब है जब डेमोक्रेसी है, फुल डेमोक्रेसी है, And- फुल फ्रीडम है। आपको जो पहनना है पहनो, आपको जो बोलना है बोलो, आपको जो करना है करो, आपको जो देखना है देखो, लेकिन और साथ में डर ना हो। Yeah. वो एक्चुअल टर्म्स में डेमोक्रेसी है ना। Yeah. कोई आपको जज ना करे कि आपने ये पहना या आपने ये कहा या आपने ये बोला या आपने ये किया तो आप सही हो या गलत हो। हु इज एनीबॉडी टू जज? आपके अपने वैल्यूज़ हैं, मेरे अपने वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक जो सोसाइटी के ओवरऑल वैल्यूज़ हैं वो थोड़े हमारी सोसाइटी में अभी ऊपर उठने होंगे। डेमोक्रेसी तो मिल गई है, फ्रीडम तो मिल गई है, फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। Yeah. अब वो फ्रीडम कर्ब होगी ये भी किसी को नहीं पसंद है, तब ये क्राइम कम होगा। आप ऑटोक्रेसी ले आओ, आप दबा के रखो, तो इस तरह के लोगों को आपने रोक दिया। बट दैट इज ऑल्सो नॉट द आंसर ना। आंसर ये है कि फ्रीडम के साथ हर माइंड, हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी कब समझेगा, कब वो मैच्योर सोसाइटी होगी, Yeah. वो अभी बहुत दूर दिखती है। दैट वर्ल्ड सीम्स टू बी वेरी फार ऑफ। और जब तक ऐसा नहीं है, लेट्स प्रे समडे आवर डॉटर्स या उनकी डॉटर्स या उनकी डॉटर्स फाइंड दैट वर्ल्ड, दैट फ्री वर्ल्ड जहाँ पे आप देयर इज़ नो फियर, आप सिर्फ होप में, आप सिर्फ ब्लिस में जी रहे हो। इस तरह का फियर नहीं है कि कोई दूसरा तुम पे हाथ उठा लेगा। Yeah. लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो वैल्यूज़ नहीं है सोसाइटी में। और सोसाइटी हम सबसे बनी है, मैं इंडिविजुअल तुम इंडिविजुअल वैल्यू की बात करो, लेकिन ये पूरे सोसाइटी में परवेग करने में कितना टाइम लगेगा, कब होगा, होगा नहीं होगा, वो सोच उस लेवल पे कब आएगी जब हर कोई समझेगा कि हर किसी के रिस्पेक्ट का दायरा क्रॉस नहीं करना है, डिस्पाइट एनीथिंग। वो आधी रात को उसका मन किया, वो बाहर जाके खाना खाने गई है या ड्रिंक लेने गई है, वो उसकी चॉइस है। यू आर नोबडी टू जज कि वो सही है या गलत है, एंड यू आर नोबडी टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। या वो बाहर गई है, दैट डज नॉट मीन शी इज इनवाइटिंग कम टेक मी, कम रेप मी। Yeah. वो तो फ्रीडम एंजॉय करने के लिए, खुली हवा में सांस लेने के लिए उसका मन किया कि मुझे अभी रात को 12 बजे आइसक्रीम खानी है, तो वो जाके आइसक्रीम खाना And चाहती है, everyone has that right. है ना। Government लेकिन कल तुम्हारी बेटी कहेगी रात को 1 बजे कि मम्मी मैं जा रही हूँ आइसक्रीम खाने, तुम नहीं जाने दोगी, नहीं। तुम घर में ताला लगा दोगी, has, yeah. है ना। तो ये बात है। तो जब तक वो सोसाइटी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंचे कि हर कोई, हर माइंड उतना ऊंचा ना हो जाए जिसको हम कहेंगे कि थोड़ी स्पिरिचुअलिटी हर माइंड में आए, कि आप एक दूसरे के दायरे को रिस्पेक्ट करो, तब तक खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा हर एक को, हर लड़की को। वो रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं लूप होल्स रह ही जाते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स बंद हो जाएंगे, ऐसा कहाँ होगा। हम अभी तो नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं लगता। लेट्स होप कि कुछ अवेयरनेस से ये रोष आना भी ऐसे इंसिडेंट सुन के ये भी ज़रूरी है। अगर हम ये रोष नहीं आएगा तो हम लाश है, हम मरे लोग हैं। हम प्रोटेस्ट भी ना करें, हम रोष भी ना दिखाएं, हम एंगर भी ना दिखाएं, हम गलत के अगेंस्ट आवाज़ भी ना उठाएं। हम ये कहते हैं कि क्या होगा, प्रोटेस्ट करेंगे सब शांत हो जाएगा, आवाज़ उठेगी 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे, सब अपने घरों में चले जाएंगे। होगा, ऐसा ही होगा, शायद फिर से होगा। निर्भया के साथ ऐसा हुआ, अभया, दिस केस इज कॉल्ड अभया, Yeah. इसमें भी ऐसा ही होगा। लेकिन वो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि But still it is in everybody's mind because हम भूल नहीं पा रहे हैं। हाँ, वो मास आवाज तो उठ रही है, प्रोटेस्ट तो उठ रहा है, एक आंसर तो मांग रहे हैं, एक जवाब मांग रहे हैं, एक जजमेंट तो मांग रहे हैं कि नहीं, वी विल नॉट एक्सेप्ट। और ये एक डॉक्टर सोसाइटी है जो बाहर निकली है, ये आम लोग नहीं थे। एक डॉक्टर एक पेशे में जब जाता है, कितनी सैक्रिफाइसेस करके वो एक डॉक्टर बनता है। आई मीन आज के टाइम में वेरी फ्यू पीपल
बहुत जल्दी लोग डॉक्टरी की चॉइस नहीं लेते. Yeah. यू विल सी दैट Yeah. इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोफेशन. डॉक्टर बन गए, वो तो बहुत पैसा कमा रहा है, वो तो दिखता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की जो चढ़ाई है वो कितनी स्टीप है, कितनी डिफिकल्ट है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. उसका एग्ज़ाम, उसका टेन्योर, वो पासिंग, वो एवरीथिंग, वो ट्रेनिंग वेरी टाइम टेकिंग. बहुत पेशेंस चाहिए. बहुत जल्दी पैसा नहीं आने लगता. आपकी जवानी के 10-15 साल निकल जाते हैं सिर्फ सीखने में, ट्रेन होने में, कुछ बनने में. तो वो डॉक्टर जो अपने 10-15 साल दे रहे हैं सोसाइटी के लिए, काम करने के लिए, इतने नोबल प्रोफेशन में, वो अगर स्ट्रीक पे उतरे हैं कि हम नहीं काम करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, और ऑल ओवर इंडिया ये आवाज़ उठाई है, तो वो देखे ना, अथॉरिटी देखे सुने ना, इट शुड वर्क ऑन इट. Yeah. गिव देम दैट सेफ्टी. वो क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कहीं तो कभी तो कुछ चेंजेस आएंगे. इसी होप से तो आवाज़ उठ रही है. मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल लोग भी निकले हैं, आप भी निकले हो प्रोटेस्ट में. एवरीबडी इज वरीड Yeah. फॉर देयर कि थैंक इन. अब हमारी डॉक्टर्स को जरूरी थोड़ी है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल वाली है तो वो अनसेफ है, बाकी लोग क्या सेफ हैं. Nowadays, even the girls are going for the BPO sector. BPO sectors also like go. We have the night shifts. We नाइट have a शिफ्ट्स ही हैं. graveyard कितनी shifts. सारी कंपनीज हैं यूएस के लिए काम कर रहे हैं, Yeah. तो उनकी नाइट शिफ्ट्स ही हैं. Even we need to work in a graveyards as well. I've worked in a multinational company, and I have to work like in a midnight, where I will be coming in a from the dark place to Santnagar. I used to commute from Gurgaon to Santnagar. हाँ, तो in बताओ, that cab. जब आप काम छोड़ के घर बैठ जाओगी क्या? Yeah, we cannot do that. We वही cannot बात do है ना, that. that's not the answer. हर उसकी भी एक विश है, एक एम्बिशन है. जैसे लड़के की है, कैरियर का एक ड्रीम है, तो एक Yeah. लड़की का भी है, उसको भी उड़ान भरनी है. तो वो इस डर से घर बैठ जाएगी क्या? तो ये आवाज़ उठनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठेगी तो चेंजेस भी नहीं होंगे. चेंजेस बहुत स्लो पेस में है, लेकिन लेट्स होप स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, सीढ़ी दर सीढ़ी कुछ तो चेंज आएगा. Yeah. कभी तो वो सोसाइटी बनेगी. आज मैं नहीं देख पाऊंगी, कल मेरी लड़की नहीं देख पाएगी, पर शायद उसकी बेटी देख पाए, Just because कोई of us. जनरेशन देख पाए. वो फ्री वर्ल्ड Yeah. जहाँ एवरी गर्ल एट एनी आवर ऑफ द डे वेयरिंग एनीथिंग, कुछ भी किसी भी प्रकार से जीना चाहे, कहीं जाना चाहे, जा सकती है. Yeah. फॉर अस इट्स अ ड्रीम. Yeah. For us it's a dream. लेकिन maybe that we only pray that that be a reality one day. And do you believe in spirituality? बहुत. एक spirituality ही ऐसी चीज़ है. देखो, spirituality and religion are two different things. है ना? Religion और spirituality में लोग confuse कर जाते हैं. Yeah. Religion में आप फंस जाते हो, है ना? Spirituality ऐसी चीज़ है जो आपको लिफ्ट करती है, आपको ओपन करती है, Align आपको अलाइन करती है, आपको ब्रॉडनेस, एक्सपेंशन देती है. Yeah. आपको ऑल एम्ब्रेसिंग बनाती है. यू नो, यू इफ यू आर स्पिरिचुअल यू विल एम्ब्रेस एनीबडी, एवरीबडी. Yeah. लाइक ऑल एक्सेप्टेंस आ जाती है. लाइक जजमेंट, ओपिनियंस कम हो जाते हैं. सो दैट इज़ द आंसर. एक वो जो सोसाइटी में लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है वो इम्प्रूव होनी होगी टू इम्प्रूव द वैल्यूज़. हर माइंड, हर इंसान के जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़े और उच्च हों. उसके लिए स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा और परवेग होना ज़रूरी है. Do we think कि अगर हम schools में if we will just start these spiritual classes, like we have subjects, we have divided the subjects, Hindi, English, Maths, EVS, and Science, Biology, Physics. We have divided all these subjects. Apart from that, do you really think we should start up with the spiritual classes as well in the schools? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए. नाउ अगेन आई टेल यू कि दिस हैज़ टू बी डन इन अ वेरी केयरफुल मैनर, क्योंकि हम लोग एक सेक्युलर सोसाइटी हैं. ये रिफ्ट ना पैदा कर दे कि ये रिलीजन में ना डिवाइड हो जाए. Yeah.
दैट इज द फियर, Yeah. यू नो, कि आप कुछ अच्छा करने के लिए चले और वो उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो सोच सबकी सेम नहीं सेम है, नहीं है। ठीक है ना, ये रिलीजन डिवीजन ले आता है। तो वो बहुत केयरफुल होते हुए एनकम्पासिंग एवरीबडी, कि किसी के सेंटिमेंट्स उसमें हर्ट ना हो, हर कोई उसको विन विन सिचुएशन अगर देखे तभी ये पॉसिबल है एट स्कूल लेवल। नहीं तो ऑपोजिशन पहले आ जाएगी, वो इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, वो हिंदुत्व इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है, वो उस रिलीजन के वैल्यूज़ को इम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। वो रिलीजन से उठ के जो वैल्यूज़ इम्पार्ट करने हैं, और बच्चों के लिए ज़रूरी भी है, जो आप स्पिरिचुअलिटी अगर हम कहते हैं, गोइंग विद इन जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा आर्ट ऑफ मेडिटेशन सीखना, Yeah. बिकॉज हम लोग ने बचपन में हमें पता नहीं था स्ट्रेस क्या है, या डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें एज चिल्ड्रन एज किड्स हमने देखी सुनी नहीं बट थी। इट्स कॉमन राइट नाउ। अब एवरी सेकेंड गर्ल बॉय, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन की तो ऐसे बातें करते हैं सेब संतरे की तरह। तो ये चीज़ों को भी काउंटर करने के लिए यंग पीपल में ये थोड़ी अवेयरनेस लानी इन अ वेरी केयरफुल मैनर, दैट विल हेल्प इन आवर सोसाइटी टू grow, to mature in a better way. Definitely that will help. Yeah. And what you suggest us, like our public, that how each and every person give or educate their child, or most, like we'll talk about the sons only, like how to educate them. देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि children are reflection of their parents. Yeah, definitely. ठीक है, तो वो चिल्ड्रन को तो एजुकेट हम तब करेंगे, या वो पेरेंट्स तब करेंगे जब उनके अंदर वो वैल्यूज हैं। जब पेरेंट्स में वैल्यूज लैकिंग है, बच्चा तो वही इम्बाइब करेगा जो वो देख रहा है, जो वो सुन रहा है, साइलेंटली, पैसिवली। Yeah, definitely. तो वही बात है, तो दिस विल टेक जनरेशंस। कोशिश होनी है वो वैल्यूज़ आप घर में दो बच्चों को, वो वैल्यूज़ आप स्कूल में दो बच्चों को, कोशिश करते रहे, टाइम लगेगा। वही है दैट सोसाइटी की जो मैच्योरिटी है वो जनरेशंस होगी। आज वो देखो, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, एज बढ़ने से विजडम आ जाती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। Yeah. विजडम इज समथिंग एल्स, है ना। सो वो विजडम जब तक नहीं आएगी, वो बच्चे वही इम्बाइब करेंगे जो पेरेंट्स में है। Yeah, definitely. तो अब वो पेरेंट्स तो बन गए हैं, XYZ। हम तो सोसाइटी में देख रहे हैं कि किस तरह की वैल्यूज है। बच्चों की तो बात में छोड़े, हम एडल्ट्स को, पेरेंट्स को देख रहे हैं किस तरह की वैल्यूज है। तो जब वो विजडम उनमें ही नहीं है, तो वो कहाँ से इम्बाइब करेंगे अपने बच्चों में। तो वो दैट चेंज ओवर विल टेक टाइम। वो सोसाइटी के बच्चों में तो आए, क्लासेस भी स्कूल में भी शुरू करो, बट इन जनरल वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग अंदर की, आई डोंट नो वो इन मास कैसे होगी, आई डोंट नो। आई एक्चुअली डोंट हैव द आंसर फॉर दैट, बिकॉज वो क्या जरिया है कि आप हर एक की इतना एलिवेट कर लो माइंड को कि वो अच्छे वैल्यूज हर माइंड में हो। वो ऐसे पलक झपकते तो नहीं हो होगा। पाएगा। Yeah. होगा, धीरे धीरे होगा। देयर आर सम जो वैल्यूज वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से आंसर यही है कि they'll have to go out more, work more in the society। आपने जैसे ये काम किया है, तो ये अवेयरनेस और ज़्यादा स्प्रेड होनी पड़ेगी। हमें अपने जो हम फैमिली कहते हैं
उसका थोड़ा शायद दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मेरा Yeah. फैमिली शायद सिर्फ मेरा हस्बैंड या मेरी बेटे या मेरा बेटा नहीं है। वो प्रोटेक्शन या वो वैल्यूज़ जो मैं से अपनी बेटी या बेटी को देती हूँ, वो दायरा थोड़ा और बढ़ाएं, Yeah. है ना। जो सोसाइटी में एनलाइटेंड लोग हैं कुछ लोग जो ये काम कर रहे हैं, वो थोड़ा और वाइड स्प्रेड ये एजुकेशन इन द सेंस सिर्फ एक वो टेक्निकल एजुकेशन नहीं, एजुकेशन मीन्स एलिवेटिंग द थिंकिंग ऑफ द पीपल, ये बाहर निकल के सोसाइटी में लोगों में करें, शायद दैट इज़ द आंसर। It's already happening. There are so many people we know, so many good souls we know, we hear of, so many philanthropists and people who are doing good work in the society. Yeah. But I think they are still very few. More have to rise, come up, do less for their own selves and do more for the society. That is the answer. थोड़ा selfless होके जीना और ज़्यादा लोगों को पड़ेगा, ताकि द बैलेंस बिटवीन द गुड एंड बैड या जो भी बोलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ थोड़ा पॉजिटिव का बैलेंस हैवी हो, yeah. है ना। अभी शायद वो बैलेंस डगमगाया हुआ है, वो कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उनको बड़ा करने के लिए वो जैसे दिवाली नहीं होती, एक दिए से दूसरा दिया, Yeah. दूसरे दिए से तीसरा दिया, तो वो लड़ी पूरी जलानी पड़ेगी। तो एक एनलाइटेंड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वो एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ पकड़ के ही, आपके कांटेक्ट में 5 लोग हैं, आप उनको पकड़ो, वो आगे 5 को पकड़े, मेरे कांटेक्ट में कुछ 4 लोग हैं, तो जहाँ समटाइम्स इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी कि आप ये काम अलग से करो, है ना, फाइंड टाइम टू डू दिस वर्क। इस काम को आप जो भी जॉब या आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, उसी में एक ये आप सोचो कि आप सोसाइटी का भला आप कैसे कर सकते हो, वो उसी में पोर करो। देन मेनी पीपल डू दैट, रादर दैन सिर्फ एक अपने सेल्फ के लिए आप अर्न कर रहे हो, अपना सेल्फिश मीन्स ख़त्म हुआ, दूसरा जाए। जो आज सोसाइटी की हालत है ना, वैसा ना होके वही है, दिए से दिया जलाना पड़ेगा। Yeah, definitely.